بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ رمضان کا آخری جمعہ بھی ہے اور آخری دن بھی ہے۔ رمضان سال میں آتا ہے، ایک مہینے کی ایک برکت ہے، موسم بہار ہے، عبادتوں کا جشن عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ اسی لیے عطا فرمایا کہ اس میں آدمی اپنے اندرون کو روشن کرے، اندر کی دنیا کو آباد کرے، اور جو ویرانی ہے اس ویرانی کو دور کرے، اپنے دل کی دنیا کو آباد کرے۔ الحمدللہ جن لوگوں نے محنت کی، کچھ حاصل کیا، اب یہ مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اسلام اللہ تبارک و تعالی نے ایک سب سے بڑی نعمت کے طور پر ہمیں دیا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ رمضان اس سال کا جا رہا ہے، لیکن اسلام نہیں جا رہا۔ اسلام رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسلام رہے گا اور قیامت تک رہے گا۔ کوئی دنیا کی طاقت اسلام کو مٹا نہیں سکتی، اور ظاہر ہے کہ جب اسلام رہے گا تو مسلمان بھی رہیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کون سے مسلمان رہیں گے، ہم آپ رہیں گے یا کوئی دوسرے کھڑے کر لیے جائیں گے۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے اور بہت سوچنے کا ہے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس قابل رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے ساتھ باقی رکھیں۔ اسلام رہے گا، اور ہم بھی اگر اسلام کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی رہیں گے، لیکن اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ ہم اسلام پر نہ رہیں، ہم اسلام کے احکامات کو پامال کریں، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہ رہے، ہمیں اسلام کے احکامات پر یقین نہ رہے، ہم دنیا کے بہاؤ میں بہہ جائیں، تیز آندھیاں چل رہی ہیں، ان آندھیوں میں ہمارا وجود مشکل ہو جائے اور پھر ہم باقی رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نہیں بات مانتے اور روگردانی کرتے ہو، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا، اور تمہاری طرح سے نکمی نہیں ہوگی۔ آج ہم مسلمانوں کا جو نکما پن ہے، ہم سب شامل ہیں اس میں، اپنی اپنی سطح پر۔ کیا جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، کرنا تو آگے کی چیز ہے، ہم سوچ کیا رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ذرا ذرا سی بات پر ایمان بیچنے کے لیے تیار، ذرا ذرا سی بات پر اسلام کے بنیادی احکامات کا سودا کرنے کے لیے تیار۔ نہ عقیدے کی خیر ہے، نہ عمل کی خیر ہے، نہ فرائض کی فکر ہے، نہ واجبات کی فکر ہے، نہ حقوق کی ادائیگی کا خیال، کچھ نہیں۔ ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں دنیا کی راحت چاہیے، دنیا کا مزہ چاہیے، ہمیں دنیا کی دولت چاہیے۔ کیا ہوگا؟ ہوگا جو ہوگا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے آگے کے لیے سوچنا بند کر دیا،
और जिंदा कौमें तो हमेशा आगे का सोचती। जो आज आपको तरक्की याफ्ता लोग नजर आ रहे हैं वो भी आगे का सोच कर यहाँ तक पहुंचे। उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस दुनिया के लिए, दुनिया मिल गई उनको। लेकिन दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी कामयाबी का जो रास्ता रखा है, और ये कामयाबी का रास्ता तो हकीकत में सारी इंसानियत के लिए था, लेकिन हमको खुद ही एहसास नहीं इसका। गौर किया जाए तो लगता है जैसे एक जानवर की अक्ल होती है, वो अक्ल हमारे अंदर भी। वो अपने अच्छे बुरे को नहीं जानता। आप देखते हैं ठेला लगा हुआ है सब्जी का, कोई बैल या जानवर आएगा, मुंह मारेगा, डंडा पड़ेगा, भागेगा, और जहां देखेगा फिर खाली, फिर आके वो खाएगा और फिर डंडा खाएगा। आज हम मुसलमानों की हालत यही हो रही है कि हम मुंह मारते हैं और डंडा खाते हैं, और फिर मुंह मारते हैं और फिर डंडा खाते हैं। ये ख्याल नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, उसके क्या नतीजे निकलेंगे। कुरान मजीद भरा पड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला का निजाम यही है इस दुनिया का कि जो जैसा करेगा वैसा ही होगा। और ये कुरान मजीद में बात फरमाई, लैसा बिअमानियकुम वला अमानी अहलिल किताब मन यअमल सुअन युज्ज़ा बिही। न तुम्हारी तमन्नाओं से कुछ होगा और न अहले किताब की तमन्नाओं से कुछ हुआ है। जो जैसा करेगा उसका बदला मिलेगा उसको। जिसने दुनिया चाहिए उसको दुनिया मिल गई, लेकिन अहले ईमान को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के लिए पैदा किया है, दुनिया के लिए नहीं पैदा किया। और कुरान मजीद भरा हुआ है। अल्लाह साफ कहता है हम अपने बागियों को देंगे, हम अपने ना मानने वालों को दुनिया भर भर के दे देंगे। क्या हैसियत है कि दुनिया की मच्छर के पर के बराबर देंगे। और साफ अल्लाह ताला कहता है इनको ढील देंगे हम, यहां तक के वो दूसरा आलम होगा जहां अल्लाह तबारक व तआला दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। क्या हकीकत थी दुनिया की। कितने दिन के लिए मजा आदमी यहाँ कर लेगा, और कितने दिन हमारी सेहत इस काबिल होती है कि हम मजा कर पाते हैं। आप गौर कीजिए, 10, 20, 25, 30 साल से आगे कुछ नहीं। बचपन की दुनिया तो अलग है मासूमाना, लेकिन जवानी के बाद ये जवानी कितने दिन रहती है। आज तो हाल ये है कि आज ये बीमारी हो, कल वो बीमारी, आज हार्ट अटैक हो गया और कल हार्ट फेल हो गया और न जाने क्या हो। 10, 20, 25 साल की मुद्दत के लिए आदमी मरता है और भूल जाता है कि असल जो जिंदगी मरने के बाद अबदुल आबाद की जिंदगी, वहां के क्या होगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हम पर करम फरमाया कि हमको मुसलमान बनाया, हमको एहसास नहीं है इसका। और बड़ी आसानी से कितने मुसलमान हैं जो आज इस्लाम का सौदा करने के लिए तैयार। कैसी नेमत अल्लाह ने दी कि अगर ये नेमत ना होती तो हमारी जिंदगी जानवरों की जिंदगी होती। अल्लाह हमें हकीकत ये है कि अगर कोई दीन पर अमल करता है तो उसको ऐसी पाकीज़ा और खुशगवार जिंदगी अता फरमाता है तो उसको जिंदगी का मजा आता। लेकिन आज हम इसके लिए तैयार नहीं। हाँ, नमाज पढ़ ली, मजबूरन पढ़ ली, मारे बांधे पढ़ ली, पढ़ी नहीं पढ़ी, रमजान आया पढ़ ली, रमजान गया इस्लाम गया। आज यही सूरत हाल है। रमजान गया इस्लाम गया, रमजान चला गया, रमजान ठीक है नमाज पढ़ रहे थे, अब रमजान बाद भी पढ़ेंगे। रमजान में कुछ ठीक जिंदगी गुजर रही थी, अब क्या है, अब रमजान चला गया, अब जो चाहेंगे करेंगे। बहुत से लोग ताक में रहते हैं, चांद निकले और जाएं शराब खानों की दुकानों और जाएं गलत कामों के लिए, अपना जो समझ में आए वो करें। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला तो अलीम व खबीर है, हमारे दिलों को जानता है क्या है हमारे दिलों में छुपा हुआ। दोस्तों, इस पर गौर करने की जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान दिया तैयारी करने के लिए दिया, तक़वे की जिंदगी के लिए दिया, आइंदा की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए दिया। अब उसके बाद रमजान गया तो हम समझेंगे इस्लाम भी गया। रमजान गया इस्लाम थोड़ी है, इस्लाम तो है, रहेगा क़यामत तक। पर अगर आप इस्लाम के साथ अपने आप को वाबस्ता करेंगे तो आप भी रहेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो आप भी गए। रमजान गया और हम भी गए। अगर हमने ये समझ लिया कि रमजान गया इस्लाम गया तो हम भी गए, फिर हम भी नहीं बचे। आज वही हो रहा। ये पैगाम है रमजान का, आखिरी दिन का पैगाम, जुमे का पैगाम। हम यहाँ से ये बात लेकर के जाएं, सोच करके जाएं, आज हमारे घर में क्या हो रहा है, आज हमारे महल्लों में क्या हो रहा है, आज मुसलमान बस्तियों में क्या हो रहा है। कितनी आसानी के साथ लोग इस्लाम को छोड़ देते हैं। जरा जरा सी बात पर 2 पैसे के लिए इस्लाम को बेच रहे हैं। हदीस में आता है एक जमाना आएगा, हालत ये हो जाएगी कि
आदमी टकों की खातिर दीन बेचेगा, टकों की खातिर। यबीअ दीनहु बिअरज़िन मिनद दुनिया, और फिर आता है युस्बिहु रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफिरा यबीअ दीनहु बिअरज़िन मिनद दुनिया, कि आदमी सुबह मुसलमान, शाम को काफिर, शाम को मुसलमान, सुबह को काफिर, टकों की खातिर दीन बेचेगा। आज वही सूरत हाल हमारे सामने। ये वाकयात रोज सुनने को आते हैं। कोई ऑफिस में है, ऑफिस में तरक्की के लिए दीन बेच रहा, हमारा प्रमोशन हो जाएगा। अरे इस्लाम है, ठीक है, घर में रहेगा, ऑफिस में इस्लाम कहाँ, बाजारों में इस्लाम कहाँ? अरे यहाँ तो हमें आगे बढ़ना है, हमारा प्रमोशन इसके बगैर नहीं होगा। नाम भी बदल दो, घर में तो नाम है मोहम्मद फाजिल, अरे यहाँ कोई दूसरा नाम रख लो। और ठीक है, तकाजे हैं, दुनिया बदल गई, कहीं शादी करनी, शादी भी कर लो। ये आज सूरत हाल हम मुसलमानों की है। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला की जात बहुत ही गैरतमंद, उसको हमारी जरूरत नहीं, हमें उसकी जरूरत है। अगर हमने दीन छोड़ा, ऐसी लात मारी जाएगी कि हम ऐसी जगह नजर आएंगे, उठना चाहेंगे उठ ना सकेंगे। हम ये पैगाम है रमजान से। अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान मजीद में कहता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ये किताब हिदायत नसीहत उतारी, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान तो रहेगा, कौन खत्म करेगा कुरान को? नहीं कर सकता। सारी दुनिया की ताकतें एक हो जाए, अल्लाह का वादा है, क़यामत तक कुरान रहेगा, क़यामत तक इस्लाम रहेगा, क़यामत तक शरीयत रहेगी। लेकिन मसला हमारा और आपका है कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मुसलमान भी रहेंगे, लेकिन हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये पता है। आप तारीख उठाकर देख लिए मुल्कों की, जहां इस्लाम का झंडा गड़ा हुआ था, जहां बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा रही थी, जिनकी अहमियत आज भी है, हमारे बड़े बड़े मदरसों में पढ़ाई जा रही है, उन पर दीन का मदार है। लेकिन फिर क्या हुआ? बिसात लपेट दी गई, खत्म हो गया सब। ये बुखारा और समरकंद और ताशकंद और तिरमिज और नसा, जहां कितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए, ये पूरा मावरा नहर का इलाका, ये जब जद में आया, सुर्ख इनकलाब के जद में आया, उसकी हालत, उसके नतीजे में क्या हुई, मैं अक्सर ही वाकया सुनाता हूँ। एक बड़े वहां बुजुर्ग थे, जिन्होंने एक तबलीग के हमारे भाई वहां गए तो उन्होंने सुनाया कि हमें याद है, हम सोचते थे यहाँ कहाँ इस्लाम खत्म होगा, यहाँ बुखारी लिखी गई, तिरमिज़ी लिखी गई, बड़े बड़े मशाइख पैदा हुए, हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद साहिब सिलसिला नक्शबंदिया पैदा हुए, यहाँ कहाँ दीन खत्म हो जाएगा। अगर वो कहते हैं कि एक वक्त आया, हमारी गफलत करती है, ये निकला कि जब सुर्ख इनकलाब आया, चौराहों पर आग भड़काई गई और कहा गया जो बुरके में खवातीन निकली हैं तो आग में कूद जाएं वरना बुरका उतार। वो कहते हैं मेरे आंखों के सामने मेरी बीवी को लोगों ने उठाया और आग में झोंक दिया। लड़कियों से हमने कहा बच्चियों बुरका उतार दो, अपने घरों में चली गई। ये इनकलाब आया, क्या हुआ ये? उन्होंने खुद कहा इसलिए इनकलाब आया कि हमने यहाँ की आबादी को नजरअंदाज किया और हम मुतमईन होकर बैठ गए कि यहाँ कौन इस्लाम को मिटाए। हमारे दोस्तों, उन्होंने ये वसीयत की हिंदुस्तान के भाइयों से जाकर कह देना, अगर वहां की अक्सरियत को नजरअंदाज किया गया तो भी खैर नहीं। दो बातें हैं समझने की, इस्लाम की हिफाजत, इस्लाम पर अमल करना, इस्लाम की अहमियत को समझना, अपनी जान से ज्यादा उसकी कीमत को समझना, अपनी औलाद से, अपने घर बार से, अपनी दौलत से, अपनी बड़ी बड़ी तिजारतों से, बड़े बड़े महलों से और बड़ी बड़ी गाड़ियों से, अल्लाह के लिए सब कुछ, हर चीज से दस्तबरदार हो जाना और इस्लाम की अहमियत को समझना। अगर हम ये नहीं समझते तो हम कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम अगर सिर्फ हम तक है और अपने भाइयों तक हमने बात नहीं पहुंचाई, अपनी जिंदगी से अगर हमने सही नमूना पेश न किया, तो याद रखिए कल वो दिन ना आए, अल्लाह वो दिन न लाए कि हमको यहाँ से हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इस्लाम के बारे में कैसी कैसी बदगुमानियां फैलाई जा रही, कैसे दूर होंगी बदगुमानियां? बदगुमानियां हमारी जिंदगी से दूर होंगी और किसी चीज से दूर नहीं होंगी। आज हमारी हालत क्या है? मैंने अर्ज किया, बाजारों में हम तैयार ही नहीं मुसलमान बनने के लिए, ऑफिसों में हम तैयार नहीं मुसलमान बनकर रहने के लिए। हमें दुनिया चाहिए, हमें प्रमोशन चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब हलाकत दिख दी जाएगी, होता रहेगा प्रमोशन। हज़रत मौलाना गैर वर्मा कहने लगे, वहां मुसलमानों को अल्लाह ने बड़ी फराखी दी थी, बड़े बड़े ताजिर, बड़ी बड़ी दुकानों वाले। मौलाना ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने दावत का काम न किया और अपने ईमान की हिफाजत न की तो याद रखो तुम्हारी दुकानों के ताले पड़ जाए। पड़ गए ताले, मामला खत्म हो गया, कोई जानता भी।
मेरे दोस्तों, अभी आज अल्लाह ने हमको मौका दिया, अभी हमारे लिए बिसात लपेटी नहीं गई है, लेकिन लपेटी जा रही है। अगर हम बेदार ना हुए और अपने इस्लाम की हिफाजत की हमने कोशिश ना की, और हर चीज से ज्यादा हमने इस्लाम की अहमियत को नहीं समझा, जान रहे या जाए, क्या कीमत है जान की? एक जान नहीं 10 जाने जाए, लेकिन अगर इस्लाम न रहा तो फिर तो वहां की नाकामी। अबदुल आबाद के लिए जहन्नम में जाना कोई आसान काम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत बताई है, और दुनिया का आने वाला जब दुनिया में अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर देखता है तो उसका दिल पुकारता है तो तन्हा वहदहु ला शरीक है, जिसके कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है, जो चाहे करे, उसी का निजाम इस दुनिया में चलेगा। जो उस निजाम पर अपने आप को लाएगा वो वहां कामयाब होगा। आंखें बंद कर ले आदमी, अपने दिल के दरवाजे बंद कर ले और किसी कोठी के अंदर घुस जाए या जमीन में धस जाए तो ठीक है, फिर जो चाहे करे, लेकिन आंखें खोल कर देखें दुनिया में क्या हो रहा। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, खुशकी और तरी में जो बिगाड़ फैल गया है वो लोगों के करतूतों का नतीजा है। और ये बिगाड़ दो तरह का है, एक बिगाड़ जो हमारे अंदर है, ईमान निकल रहा है हमारे अंदर से, एक बिगाड़ सारी दुनिया में। देख लीजिए ये एटमिक ताकतें और ये बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं और उसके ये जहरीले धुएं इस पूरी फिजा को मसमूम कर रहे हैं, और जहां तक के समंदर के अंदर मछलियां तक मर रही, न जाने क्या क्या हो रहा। ये करप्शन जो फैला हुआ है और जमीन जो अपनी जगह पर नहीं रही, इसमें हमारी करतूत है, इसके नतीजे में हम आगे न जाने क्या क्या भुगतेंगे, वो तो भुगतेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला तो हमारे ईमान का। भाई और दोस्तों, हम यहाँ ये तय करके जाएं कि हमें इंशाअल्लाह ये रमजान जा रहा है लेकिन इस्लाम बाकी, छोटा रोजा जा रहा है लेकिन बड़ा रोजा बाकी। ये छोटा रोजा उस बड़े रोजे के सदक़े में हमको मिला, इस्लाम ना होता क्या रमजान मिलता, क्या रोजा मिलता? तो भाई और दोस्तों, ये छोटा रोजा तो मुकम्मल हुआ, लेकिन मेरा जो हमारे लिए बड़ा रोजा है वो बाकी। और बड़ा रोजा जिसमें हमें परहेज बताया गया, यहाँ तो थोड़ा सा परहेज था, कुछ वक्त के लिए था, और ज्यादा था इस एतबार से कि खाने पीने की भी इजाजत नहीं थी, जो आम इजाजत है। लेकिन अब जो परहेज है खाने पीने का नहीं है। हाँ, खाने पीने में अगर कहीं हुर्मत का शायबा है तो परहेज है। हराम मत खाओ, हराम खाओगे ईमान से हाथ धो लोगे। अगर हराम खाओगे ईमान निकल जाएगा। कुलू मिन अत-तय्यिबाति वअमलू सालिहा, पाकीज़ा चीजें खाओ और अच्छे काम करो, और हराम खाओगे तो अच्छे काम करोगे। आज दुनिया में जो बिगाड़ और फसाद है उसका एक बड़ा सबब ये है कि एक एक पेट के अंदर हराम जा रहा, मुख्तलिफ शक्लों से जा रहा। बैंकों में पैसे हैं, सूद भी ले लेते हैं आसानी से, और उसके जवाब के आसानी से बाद मरतबा फतवे भी दे देते हैं, और लोग उसको आसानी से इस्तेमाल भी कर लेते हैं। फिर रिश्वत भी नजराने के नाम पर ली जा रही है, और उसके अलावा जो कारोबारी नाहमवारियां हैं वो सब जानते हैं। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वो सोचता है हड़प कर लो, और ये नहीं जानता कि यहाँ हड़प कर लेंगे वहां हम हड़प कर लिए जाएंगे, खत्म हो जाएगा किस्सा। और फिर ये कि अगर हराम माल जाएगा पेट में तो नेक अमाल की तौफीक नहीं होगी, और तय्यब और पाक माल खाओगे तो अमल सालिहा, उसके बाद अच्छे काम करोगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है खाओ, साफ सुथरी ग़िज़ाएं खाओ और अच्छे काम करो। आज ये सारा फसाद इसीलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं होता। तो भाइयों, हम ये तय करें कि रमज़ान जा रहा है, इस्लाम बाकी, छोटा रोज़ा गया, बड़ा रोज़ा बाकी। हमें उसका इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी ख्याल रखना है, और ये तय करना है कि हम गलत कामों से बचेंगे और ईमान महफूज करने के लिए हर तदबीर करेंगे, सिर्फ अपना ही नहीं। आप याद रखिए, आप दूसरों का ईमान बचाएंगे, अल्लाह आपका ईमान बचाएगा। हदीस में आता है अल्लाह फी औनिल अब्द मा काना अल अब्दु फी औनि अखीह, बंदा अपने भाई की मदद करता है तो अल्लाह उसकी मदद उस वक्त तक करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। हम अपने ईमान वाले भाइयों के ईमान की फिक्र करेंगे और उसकी हिफाजत की तदाबीर करेंगे, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करेगा। हम तय करके जाएं, अपने महल्लों की फिक्र करनी है, अपने घर की फिक्र करनी है, हमारे घरों का हालात क्या है। ऐसी सब खबरें मिलती हैं कि अकल दंग रह जाए। अच्छे अच्छे दीनदार उलमा, मैंने पहले भी बात आज की थी, क्या हो रहा है घरों में उनको पता ही नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तय करने की जरूरत कि हमें हर हाल में अपने ईमान को बाकी रखना। इंशाअल्लाह अपने घर में हमें इसकी खबर लेनी है क्या हो रहा है, और सिर्फ घर ही की नहीं, किसी गांव देहात के आप हैं, आप आलिम हैं, फर्ज है आपका
उस पूरे देहात के बारे में सोचें कि वहां क्या हो रहा। आप किसी महल्ले में रहते हैं, आप आलिम हैं, आप दीन का कुछ ना कुछ जज्बा रखते हैं, फर्ज है आप पर, आप देखिए कौन किधर जा रहा है। आप अगर अपने अंदर फिक्र नहीं पैदा करेंगे तो याद रखिए, जो पानी आज दूसरे घर में दाखिल हुआ है तो वो आपके घर में आएगा, जो तूफान दूसरे घरों में आ रहा है तो हमारे घर में आएगा। ये नहीं होता। आग खुला घर में लगी है, आप सोते रहिए आप। वो आग जब आपके घर में आएगी, खुदा ना खास्ता हो आपका घर जलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। हर शख्स यही सोच रहे कि आग तो खुला घर में लगी है, आग को जहां लगे हमको बुझानी पड़ेगी तो फिर हम आग से बचेंगे और हम आग से नहीं बच सकते। आज तो इल्हाद की आग लगी है, इर्तिदाद की आग लगी है, और ये नया निजाम तालीम हमको इर्तिदाद इल्हाद की तरफ ले जा रहा है। अगर अपना हमने निजाम तालीम राज न किया और हमने दीनी तालीम का इंतजाम न किया तो याद रखिए कि अपनी नस्लों को आप बचा ना पाएंगे, और कल क़यामत में यही नस्लें फरियाद करेंगी कि या अल्लाह ये हमारे बड़े थे, इन्होंने हमें गलत रास्ता दिया, अल्लाह इनको दोहरा अज़ाब, अल्लाह वो दिन न लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम रखा है, आप करेंगे तो अल्लाह आपकी मेहनत को ज़ाय नहीं करेगा। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह साफ कहता है तो हमारे लिए अपनी जानें खपाते हैं, उनके लिए अपने रास्ते हम खोलते हैं। आप मायूस ना हो, आप बिल्कुल मायूस ना हो। इससे सख्त हालात इस मुल्क पर गुजर चुके। दुनिया में जो हुआ, तातारियों ने हमला किया, ईंट बजा दी, बड़े बड़े इस्लामी शहर तबाह कर दिए, ताराज कर दिए, खून की नदियां बहा दी और कुतुब खाने जला दिए। इस तरह जलाए कि नदियों में राख डाली गई तो नदियां काली हो गई। सब कुछ हो चुका है और हमारे इस मुल्क में भी हो चुका है। जब यहाँ तकसीम का मरहला था तो ये लगता था मुसलमान नहीं रह पाएंगे, लेकिन अल्लाह ने रखा उनको। अल्लाह ने तौफीक दी हमारे उलमा और असहाब रहम को, उन्होंने मदारिस कायम किए, मकातिब कायम किए, उन्होंने तबलीगी तहरीक का निज़ाम जारी किया, घर घर गए, गाँव गाँव गए और मशक्क़तें उठाई और भूखे रहकर और सख्त गर्मियों में उन्होंने सफर कर करके लोगों को समझाया कि दीन पर चलो। इसी में कामयाबी। मेरे दोस्तों और भाइयों, आज दोबारा फिर इसी की जरूरत है, इसी जांफशानी की जरूरत है, इसी फिक्र की जरूरत है। आप इस फिक्र को लेकर जाइए, तय करके जाइए कि हमें इंशाअल्लाह खुद भी ईमान पर रहना है और अपने भाइयों को भी ईमान पर बाकी रखने के लिए तदबीरें करनी, हर लिहाज से तदबीरें करनी। आप छोड़ दिए बच्ची को किसी कॉलेज में डालिए और हॉस्टल में डाल दीजिए और आप बड़े मुतमईन है माशाअल्लाह, वो तो डॉक्टर बन जाएगी, वो तो इंजीनियर बन जाएगी, उसको तो फला जगह मुलाजमत मिल जाएगी, हमारा मसला रोटी रोटी का हल हो जाएगा, रोटी रोटी का मसला हल हो जाएगा। आप लात मार कर दूसरे शहर चली जाएगी, आपको मुंह देखना गवारा ना करेगा, और करे ना करे फिर उसके बाद क्या होगा? उसका ईमान रहेगा, उसकी इज्जत रहेगी, क्या हो रहा है इस वक्त? तो भाइयों फिक्र करो, आप कहाँ भेज रहे हैं अपने बच्चों को तालीम के लिए, वो कहाँ जा रहे हैं, उनका ईमान कैसे हमें बाकी रखना है, उसके लिए कैसे हमें इंतजाम करने हैं। अगर ये हमने ना सोचा तो याद रखिए कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं। तो ये रमज़ान मुबारक अल्लाह ने हमें दिया, हमने बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जो तौफीक हुई किया, अल्लाह कबूल फरमाए और उसको अल्लाह हमारे अंदर तक़वी की ज़िंदगी का एक बीज ऐसा बना दे कि जो तनावर दरख्त की शक्ल में सामने आए। ऐसी ताकत अल्लाह ईमान की हमें अता फरमा दे कि कोई हमें अपनी जगह से टस से मस न कर सके। अल्लाह ताला हमारे अंदर ऐसा दीन का जज्बा पैदा फरमा दे कि हम किसी को देखें तो हमारे रातों की नींद हराम हो जाए कि कैसे जा रहा है जी, इससे फिर रहा है, हम किस तरह मेहनत करें। अल्लाह का शुक्र है ऐसे नौजवान हैं जिनके अंदर जज्बा है, काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये जज्बा हर जगह पैदा करना है और इसकी कोशिश करनी है कि इंशाअल्लाह ये जो रमज़ान जा रहा है कि हमें कुछ दे कर जाए और ये बड़ा रोज़ा जो इस्लाम का है इंशाअल्लाह हम इस रोज़े की पूरी अहमियत को समझते हुए हराम और हलाल का फ़र्क समझेंगे और उन तमाम चीज़ों से जिनसे हमको रोका गया हम उनसे बाज रहेंगे। तो इंशाअल्लाह अगर ये रोज़ा हमने पूरा कर लिया और ईमान के साथ हम दुनिया से चले गए तो अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हमारा इफ्तार करें, वहाँ हौज़ कौसर पर इंशाअल्लाह हमारा इफ्तार होगा और जन्नत में दस्तरख़्वान सजेगा। लेकिन ये जब होगा जब ये रोज़ा रखा जाए, इसकी फिक्र की जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक दे। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने को हमारी ज़िंदगी में और पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए ऐसा इनकलाबी रमज़ान बना दे कि एक नई ज़िंदगी हो, नया हौसला हो, नया ईमान हो, एक नई फिक्र हो और उसके साथ इंशाअल्लाह जो हज़रात इस वक्त भी यहाँ पर हैं, पहले से हैं, एक तोहफ़ा लेकर जाएँ, तय करके जाएँ कि इंशाअल्लाह हमको ये मेहनत करनी है। अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र
اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اے اللہ یہ مبارک مہینہ مکمل ہوا، اے اللہ جو کوئی توفیق تو نے عطا فرمائی اپنے فضل سے قبول فرما، یا اللہ اس کو پورے سال کے لیے سایہ رحمت بنا دے، یا اللہ ایمان کی حفاظت کا اس کو ایک بہت بڑا ذریعہ بنا دے، ہمارے اندر اس کا جذبہ پیدا فرما، یا اللہ ہمارے اندر دین کا درد پیدا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت ہمارے پاس ہے، اے اللہ اس امانت میں خیانت سے ہماری حفاظت فرما، پوری قدردانی کی توفیق عطا فرما اور دوسروں تک اس کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں اور ہم تو سراپا کوتاہ ہیں، اے اللہ ہم کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے، سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما، اے اللہ جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان کے گھر والے ہیں سب کو یا اللہ معاف فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرما، آنے والی نسلوں کو یا اللہ کو ایمان پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا